बताओ, आप लोग ध्यान दे रही हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना। कल का हमारा टॉपिक ही यही था, कोर और कर्नल। व्हाट मैम इज इट? जहाँ पे हाँ जहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस नहीं लगता। हाँ, जहाँ पे सिग्मा मिनिमम 0 होता है। ओके, और सिग्मा मिनिमम को हम कौन सा स्ट्रेस कहते हैं? दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस। सो इट टेंसाइल इज अ स्ट्रेस। दैट पोर्शन ऑफ अ कॉलम at which sigma minimum or tensile stress is zero. That portion is known as a core or kernel. तो हमें कोर और कर्नल क्यों डिजाइन करना होता है? बिकॉज हमारा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से हमारा कॉलम क्या होता है? लिफ्ट हो जाता है। जहां बेस होता है, बेस से ऊपर उठ जाता है। ओके, दैट वाज उसकी वजह से हमारा कॉलम क्या रहता है कि उसे फेल होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन विच अवर सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा टेंसाइल स्ट्रेस 0 रहेगा। ऐसा पोर्शन मुझे डिजाइन करना है और उस सेक्शन के अंदर ही मुझे लोड को ट्रांसफर करना है। सो दैट portion is known as a core or kernel. So again, what is core or kernel? That is a portion of beam at which my sigma minimum or my tensile stress is equal to 0. Okay, that portion is known as a core or kernel. Okay, for rectangular column, the portion is known as a middle third rule. For circular column, that portion is known as a middle quarter rule. Okay, उसको middle quarter rule भी कहते हैं। Why middle quarter rule? Because कि वो जो CG है, सेंटर लाइन है, उससे d/4 दोनों तरफ d/8 मतलब टोटल जो डिस्टेंस होता है वो होता है उसका d/4। सी हियर दिस डिस्टेंस इज d/4। ये मेरा डिस्टेंस क्या है? d/4। बट in rectangular portion that distance is equal to d/3। that why अगर मैं पूछूं कि for which section the core kernel is also known as the middle third rule, okay, so the answer is rectangular section. Okay, and for circular section it is a middle quarter rule. Okay, so you मैम have to संकेत का अलाव करो ना। एक मिनट अलाउ ही है, संकेत हो गया है एंटर। Okay, so that portion is known as a core or kernel, or in other ways we can say for circular column it is a middle quarter rule. For rectangular column it is a middle third rule, right? So that is a middle quarter or middle third rule. Now the same equation we have to derive for the hollow circular section and hollow rectangular section. उसके अंदर सिर्फ क्या वेरी होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी होगा, एरिया वेरी होगा। ओके, सो हियर यहाँ पे फिगर नहीं दी है, लेट्स वी ड्रॉ फिगर। ओके, हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं फॉर अ होलो सर्कुलर सेक्शन, राइट? सपोज ये मेरा आउटर सेक्शन है, ये मेरा इनर सेक्शन है, एंड आई हैव टू द डाया ऑफ द आउटर सेक्शन इज DO। सपोज ये आउटर सेक्शन का डाया है कैपिटल D0। ओके, डी आउटर। ओके, इनर का डाया है सपोज डी इनर। ओके, सो DO is equal to external diameter and DI is equal to internal diameter. So here it is my hollow circular section. अगेन दिस वन इज अ टॉप पोर्शन ऑफ अ बीम। आपको जो अज्यूम करना है, सपोज आपके पास पेंसिल है, पेन है, तो उसका जो ऊपर वाला जो सर्कल है ना, जो होलो रहेगा, ओके, वो पोर्शन आपको अज्यूम करना है। दैट इज अ दिस वन इज अ टॉप पोर्शन ऑफ अ कॉलम। ओके, कॉलम का जो ऊपर वाला पोर्शन है, जहां हम अगर हम कॉलम को ऊपर से देखेंगे तो हम लोगों को जो सर्कल दिखता है, दैट इज इट। ओके, so that is DI is equal to internal diameter, DO is equal to external diameter और outer diameter, हम उसे outer diameter भी बोल सकते हैं। ओके, P is equal to eccentric load, that all of you know कि जो अगर जो मेरी सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन से सपोज किसी E एसेंट्रिसिटी पर मेरा कोई लोड लग रहा है, एंड माई लोड इज इक्वल टू P। E is equal to eccentricity. Okay, now all of you know what is A is equal to area of the section. But now what is area of hollow circular section? That is equal to pi by 4 capital D square minus small d square जो होता है। Okay, और in other words pi by 4 outer square minus inner square. Okay, तो अगर मेरा एरिया है pi by 4 d outer square minus pi by 4 d inner square, तो मेरा pi by 4 कॉमन निकल जाएगा, or my area is equal to pi by 4 d outer square minus d inner square. Okay, so that is equal to area of a circular column. So this is equal to area of a circular column, that is equal to pi by 4 outer dia square minus inner dia square. Okay, same
What is the moment of inertia? Moment of inertia क्या होता है circular section का? That is sorry, what is the bending moment? That is equal to m. Okay, moment due to eccentric load. All of you know, if I have a column and suppose this is a center line of column, this is an eccentric load P, this is a moment E. Okay, तो due to the eccentric load मेरी क्या डेवलप होगी? मोमेंट की वजह से क्या होगा? मेरा कॉलम उस डायरेक्शन में टर्न होगा, मूव होगा. Okay, so what is a moment? Moment is equal to load into distance. Here my distance is equal to, that is equal to load into perpendicular distance, right? So my perpendicular distance is equal to what? That is equal to E. According eccentricity is equal to eccentricity. Okay, so my moment is equal to, that is equal to moment due to the eccentric load P. तो m is equal to P into E. ये तो अभी आपको पता होना ही चाहिए, हमने इसके बहुत से न्यूमेरिकल्स किए हैं, right? Now what is section modulus? That is equal to I by y. That all of you know. ये सभी इक्वेशन मैंने आपको लिखवाए हैं. What is my section modulus? My section modulus z is equal to I upon y is equal to maximum distance. Okay. और I डिपेंड करता है आप कौन से, आपका लोड कौन से एक्सिस पे लग रहा है. अगर आपका लोड x एक्सिस पे लग रहा है तो आपको फाइंड करना होता है I y. मैंने आपको पहले ही बताया. अगर आपका लोड, सपोज ये मेरा कॉलम है और ये मेरा एसेंट्रिक, हियर इट इज अ सर्कुलर कॉलम. ओके, तो सपोज, लेकिन सर्कुलर कॉलम के लिए आई एक्स एक्स आई वाई वाई बोथ विल बी सेम, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा. ओके, लेकिन रेक्टेंगल के लिए वो चेंज होगा. ओके, तो सपोज मेरा जो लोड है वो ये मेरी एक्स एक्सिस पे है, तो एसेंट्रिसिटी ई है, लोड पी है, तो मुझे क्या फाइंड करना होता है? आई वाई वाई, बिकॉज मेरी एसेंट्रिसिटी कहाँ से है? वाई वाई एक्सिस से. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर. अगर आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल दिया है एंड यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम एंड मिनिमम कंबाइंड स्ट्रेस, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप इन माइंड at which axis your load is acting. Okay, if your load is acting on x axis, so you have to find I y y, और आपको x बार फाइंड करना होगा. जो हमारा y मैक्सिमम होता है ना, that is equal to x बार. इसके न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं. ओके, इसलिए मैं एकदम उसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ अभी. ओके, सो here it is a circular column. So for circular column my ix is equal to I y y. कितना होता है ix for circular column? क्या होता है? सर्कुलर कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? नो वन नोज. Yes, that is equal to pi by 64 d4. That is equal to outer. Okay, d outer 4. Okay, so that is equal to moment of inertia for the circular column. Okay, here it is a moment of outer square minus inner square. It is a moment of inertia. That is equal to pi by 64 outer moment of inertia minus inner moment of inertia. दोनों का minus होगा. Okay, so outer square minus inner square. Okay, so now okay, so again my section modulus, that is equal to z. So my z is equal to what? That is equal to I upon y maximum. Okay, as I told you, moment of inertia is equal to what? Pi by 64. जैसे जैसे हमारा सर्कुलर कॉलम के लिए होता है pi by 64 d4, but here it is a hollow circular section. So outer square minus outer 4 minus inner 4. Okay, raised to 4. Okay, so d outer raised to 4 minus d inner raised to 4. और हमारा y maximum क्या होता है? Y maximum is equal to dia by, suppose dt is equal to outer dia d0. ओके, तो इसका माइनस इसका y मैक्सिमम क्या होगा? तो d0 by 2, हाफ डिस्टेंस. y इज इक्वल टू y बार, यार x बार क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम तक का डिस्टेंस. ओके, सो दैट इज इक्वल टू योर y मैक्सिमम. So in this case our y maximum is equal to what? Suppose our dia is equal to, outer dia is equal to d0. So my y maximum is equal to, that is equal to d0 by 2. Okay, so this is my y maximum. Okay, so z is equal to I by y maximum. Now all of you know what is the moment of inertia for the hollow circular section, and all of you know what is the y maximum for hollow circular section. That is equal to
डाया बाई टू और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ओके, जो बाहर वाला सर्कल होता है जो मैक्सिमम वाई बार होता है, दैट इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम, ओके, वो आपको लेना है, ओके। तो मैक्सिमम क्या होगा, आउटर पोर्शन का होगा, सो दैट इज इक्वल टू डी जीरो बाई टू, ओके। अगर हम आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो we shall get this answer, तो हमें ये आंसर मिलेगा, ओके, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी जीरो। अगर ये 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 32, ओके। और तो हम लोगों को ये आंसर मिलेगा, सो दैट इज इक्वल टू जेड। ये आंसर क्या है, जेड के लिए है, दैट इज इक्वल टू जेड, ये मेरा आंसर है जेड, ओके। तो जेड इज इक्वल टू, दिस इज अ जेड, this is a section modulus, so section modulus is equal to what, that is equal to pi by 32 d outer in bracket d outer 4 minus d inner 4, okay, so that is equal to my section modulus, that is equal to z, okay। अगर आप उसे z के फॉर्म में नहीं रखते हो और यहाँ पे आप, जैसे हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे m मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज इंसर्ट करते हो, ओके। अगर मुझे इसको सपोज मैं इसे z के फॉर्म में नहीं रख रही हूँ, जैसे हमने न्यूमेरिकल्स किया था बंसल में, सभी जो न्यूमेरिकल्स है वो सेक्शन मॉड्यूलस के फॉर्म में है। हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं दैट इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, उसकी वैल्यूज हमने रखी है, ओके। तो अगर आप ऐसे करते हो फिर भी यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। अगर मैं ये जो मेरा इक्वेशन है ना दैट इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर अगर मैं m की वैल्यू रखती हूँ, i की वैल्यू रखती हूँ और y की वैल्यू रखती हूँ, सो देन ऑल्सो आई विल गेट दी सेम आंसर, तभी मेरा जो आंसर है होगा वो आंसर मुझे यही मिलेगा, ओके। ओके, नाउ व्हाट इज माय बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू m बाई z। m बाई z कैसे आया, ओके, वो जो हमारे ऊपर वाला इक्वेशन है ना यहाँ पे, okay, this is the equation for bending stress, sigma b is equal to my by I, ओके, my by I। अब इसके अंदर क्या करती हूँ, इस I को, इस ये जो y है उसको मैं यहाँ पे नीचे ले जाती हूँ, तो वो I by y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज इक्वल टू z। तो माई सिग्मा b इज इक्वल टू व्हाट, m by z, दिस इज अ वैल्यू ऑफ माई सिग्मा b, माई सिग्मा b इज इक्वल टू m by z, okay, because this is a bending equation that all of we know, okay, my by is equal to sigma by is equal to e by r, लेकिन यहाँ पे रेडियस है ही नहीं, ओके। रेडियस कौन, e by r हम कब ले सकते हैं, जब हमारा कोई रेडियस के लिए हो, okay, but here in this case we don't have any radius, we just have circular section, okay, so for that we have to apply this equation, that is equal to m by I is equal to sigma by by, okay। अगर इस इक्वेशन को मैं सिग्मा बी के टर्म में लाती हूँ तो माई सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, दैट ऑल ऑफ यू नो, ओके। अब मैं ये क्या करती हूँ, इस y को मैं यहाँ पे नीचे ले आती हूँ, ओके। सो माई सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन आई अपॉन वाई, but what is my I by y, I by y is equal to my section modulus, because my section modulus is equal to moment of inertia upon maximum distance from the neutral axis, okay। So that is okay, so my sigma b is equal to m by z, that is a value of my sigma b, that is equal to m by z, okay। So this is my sigma b, ये जो value है that is equal to sigma b, but sigma 0 is equal to what, sigma z is equal to p by a, that is equal to direct stress, okay। So I have my sigma b, I have my sigma 0, I have direct stress and I have bending stress, okay। So let's insert this value, okay। नाउ हैंस फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। मैंने आपको कल दो टेंसाइल स्ट्रेस की कंडीशन दी थी कि व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस जीरो, मेरा टेंसाइल स्ट्रेस इन विच कंडीशन माय टेंसाइल स्ट्रेस विल बी जीरो, मेरा टेंसाइल स्ट्रेस जीरो कब होगा, एक द फर्स्ट कंडीशन इज
कि जब मेरा सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा 0 होगा, ओके, बिकॉज दोनों सेम हो गए, बिकॉज माई सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी, ओके। तो अगर मेरा जो टेंसाइल स्ट्रेस है, मेरा सिग्मा बी की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी, दोनों सेम है, तो माई सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 0, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से कम होना चाहिए, ओके। इन दैट कंडीशन ओनली दैट मेरा जो कॉलम है उस पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस 0 होना चाहिए या फिर 0 से कम होना चाहिए, तभी नो टेंशन कंडीशन डेवलप होगी, ओके। So these are the two conditions for the sigma minimum is equal to 0 or sigma minimum should be less than 0. Okay. So in this case, again, my sigma bending stress less or equal to direct stress. So these are the two condition. It may be equal to 0 or it may be less than 0. Sorry, sigma b may be less than सिग्मा 0, मतलब मेरा बेंडिंग स्ट्रेस या तो डायरेक्ट स्ट्रेस के जितना होना चाहिए या तो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस से कम होना चाहिए, ओके। सो इन दैट कंडीशन ओनली माय कॉलम विल बी एक्ट एज अ नो टेंशन कॉलम, ओके। मेरे कॉलम में नो टेंशन कंडीशन हो डेवलप होगी, ओके। सो यहाँ पे इन दिस केस as I told you, my sigma b should be less than sigma 0 or it should be equal to sigma 0, okay। तो now what is sigma b? sigma b हमने ऊपर की इक्वेशन में लिया, that is equal to m by z, जो हमने ऊपर के ऊपर जो हमारा इक्वेशन था ना, मेरा m y I is equal to sigma b upon y, तो सिग्मा बी के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लाए और y को यहाँ पे ले आए, दैट इज इक्वल टू z। तो माई सिग्मा बी इज इक्वल टू m बाई z, ये हमने ऊपर के इक्वेशन में ये एक लाए थे, ओके। सो my sigma b is equal to m by z and y sigma 0 is equal to p by a. So my m by z less or equal to p by a, that is equal to sigma b less or equal to sigma 0, okay। But what now, what is moment? Moment is equal to load into distance, that is equal to perpendicular distance. So my moment is equal to p into e, that is equal to load into eccentricity upon z, okay, less or equal to p by a, okay। Now what will be happen, यहाँ से हम ये दोनों साइड से क्या करते हैं, p को कट कर देते हैं। अगर हम इज इक्वल टू के दोनों साइड अगर हमारा p रहता है तो मेरा p क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कट हो जाएगा, तो क्या आया, दैट इज इक्वल टू e बाई z लेस और इक्वल टू 1 अपॉन a, ओके। now what is eccentricity? my eccentricity E is equal to z by a, my eccentricity शुड बी लेस। अगर मेरी एसेंट्रिसिटी, अगर मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा फोर्स का डिस्टेंस है, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? इट इज अ डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस से है वहां से मेरा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, उसका डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू माय एसेंट्रिसिटी। इफ my eccentricity is lesser equal to z by a, then and only in that portion my tensile stress will be 0। मतलब मेरा जो होलो सर्कुलर सेक्शन है, ये मेरा होलो सर्कुलर सेक्शन है, तो उस सेक्शन का इतना पोर्शन, ये पोर्शन, ओके, ये पोर्शन क्या होता है, जैसे इतने पोर्शन में मेरी नो टेंशन कंडीशन डेवलप होगी, ओके। नाउ इंसर्ट द वैल्यू ऑफ z एंड a, जो ऊपर हमने z की वैल्यू, z का इक्वेशन हमने लाए थे ना, z के फॉर्म में जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, यहाँ पे what is the value of z? This is equal to z, so z is equal to pi by 32 d outer upon d04 minus d inner 4, okay। ये जो z की वैल्यू है हमें इस इक्वेशन में इंसर्ट करनी है यहाँ पे, ओके। सो वी हैव टू इंसर्ट वैल्यू ऑफ z, ये हमने वैल्यू ऑफ z की वैल्यू इंसर्ट की एंड एरिया की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 आउटर स्क्वायर, आउटर डाया स्क्वायर माइनस इनर डाया स्क्वायर, ओके। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ओके, सो एट लास्ट वी विल गेट दिस आंसर, हमें ये आंसर मिलेगा।
So this equation you have to remember for hollow circular section. So my eccentricity E should be less or equal to 1/8 d outer square इन ब्रैकेट डी आउटर स्क्वायर प्लस डी इनर स्क्वायर. ओके, अगर इतना जो मेरा पोर्शन है, अगर हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास डी जीरो की वैल्यू है, डी आउटर डायमीटर है, इनर डायमीटर है, तो हमें एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी. ओके, सो एंड ओनली इन दिस मच डिस्टेंस, सिर्फ इतने ही डिस्टेंस में मेरी नो कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन डेवलप होगी. अदरवाइज मेरे कॉलम क्या हो जाएगा, टेंसल की वजह से फेल हो जाएगा. ओके, तो बिफोर डिजाइन दी कॉलम यू हैव टू, अगर आपकी बिल्डिंग पे आपको मैक्सिमम ट्राई क्या करना चाहिए कि आपका जो लोड है वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस पे ही लगे, मतलब कॉलम के बीच में ही लोड आए. लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि जहां पे आपको ऐसा कॉलम डिजाइन करना है कि आपकी नो टेंशन कंडीशन डेवलप नहीं हो रही, तो इन दैट कंडीशन यू शुड हैव टू apply load or transfer your load into the core of the section. Okay, so into the core of the section you must have to transfer the load. Okay, and that section is known as a core. और वो core कितना होगा that you should have to design. Okay, so यहाँ पे सब कोई थोड़े आइडियल शेप है, लाइक रेक्टेंगुलर, होलो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, होलो सर्कुलर, तो उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किए हैं. तो उस पोर्शन में ही आपको लोड ट्रांसफर करना है, जिस वजह से आपका कॉलम जमीन से ऊपर ना उठ जाए या फिर फेल ना हो जाए. ओके, सो दिस इज अ एसेंट्रिसिटी ई फॉर दी होलो सर्कुलर सेक्शन. नाउ लेट्स वी फाइंड दी होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आप खुद से फाइंड करो. अभी मैं जिसको पूछूं उसको मुझे आंसर देना है, एकदम इजी है उसका. तो जैसे हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किया था ना, वैसे ही है. चलो, let's try to calculate core or kernel for the hollow rectangular section. आप लोगों को ये चारों चार डेरिवेशन आपकी बुक में लिखने हैं. आपके पास है बंसल के अंदर से ये चारों चार डेरिवेशन आपको समझ के लिखना है. ओके, so here it is a hollow rectangular section. Outer width is capital V, inner width is small b, outer depth is capital D, inner depth is small d, and you have to design a core or kernel for the hollow rectangular section. Core or kernel of hollow rectangular section or value of eccentricity for hollow rectangular section. Okay, so that you have to find. What is the value of eccentricity for the hollow rectangular section? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? Yes ma'am. Now try to find it. Yes ma'am. चलो, कैसे फाइंड करोगे? सेम है, आप लोगों ने सर्कुलर करा, रेक्टेंगुलर करा, सेमी सर्कुलर करा. Just like that way you have to find for the hollow rectangular section. होगा? Correct ma'am. ओके, सेम सर्कुलर का क्या वैसे ही करना है. z पहले फाइंड करना है. ओके, और वो जो आपका इक्वेशन है उसके अंदर आपको z की और E0 की वैल्यू इंसर्ट करनी है. ओके, बिकॉज अवर सिग्मा बी इज लेस देन, सिग्मा बी शुड बी लेस और इक्वल टू सिग्मा बी. उसके अंदर आपको सिग्मा बी और सिग्मा 0 की वैल्यू इंसर्ट करनी है. ओके, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेक्शन मॉड्यूलस है, उसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन के टर्म में आपको आंसर लाना है. बस सिंपल है. जैसा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किया सेम करो. चलो, ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है. सेम यू हैव टू फाइंड फॉर दी होल, सॉरी ये मेरा होलो सर्कुलर के लिए. सेम यू हैव टू फाइंड फॉर दी होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन. सर्कुलर की फिगर नहीं है, आप लोग फिगर ड्रॉ कर देना, बुक में नहीं दी है. जो मैंने आपको अभी फिगर ड्रॉ की थी ना, सेम फिगर ड्रॉ करना आप.
सिद्धार्थ कर रहा है तू? सिद्धार्थ, अंकुर, Yes, हाँ madam. मैडम। हाँ तो आंसर देना मुझे दोनों। यस मैम। अंकुर तू वहीं वहीं पे राजस्थान में ही आ गया यहाँ पे? नहीं मैम यहीं पे हूँ। अच्छा, इधर मेरे को कोई आने नहीं दे रहा गुजरात वापस। क्यों नहीं आने दे रहा? जयपुर में तो बहुत बारिश है। बाढ़ आ गई, बाढ़। वही तो। हेलो, हाँ मैडम। हाँ बोलो मैडम। हाँ मैडम। રિફ્રેશર કોર્સ એટલે કે અત્યારે જે કોર્સેરા મને એમાં કરે છે તે એ જ કોર્સ ને? વર્કશોપ એટલે મેં ઓનલાઈન નથી કર્યું, ઓફલાઈન તે ચાલશે ને? ઓકે, તો મેં ઓફલાઈન કરે મતલબ એનઆઈટી માંથી કરેલો છે એક વર્કશોપ કરેલો છે, પછી આપણી કોલેજમાં પેલું હતું ને પેલા સર આવેલા ને તે વાળું એક કરેલો છે, વન ડે વર્કશોપ કરેલો છે। હા હા ઓકે હા 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 ઓકે હા એની પર કરેલો છે પેલા રિસર્ચ કોર્સિસ કરેલા છે, એક કરેલો છે, પછી હા પછી પેલું સરે નહીં આપણું આપણે ટીચર્સ ટ્રેનિંગ હોય એના 2 કોર્સ કરેલા છે, પેલા નહીં ગૌરવ સરે બી કરેલો છે ટીચર્સ વાળો। હા એમાં 10 કલાકનો એક કોર્સ હતો ને એક 14 કલાકનો કોર્સ હતો, એવા 2 કરેલા છે। એનપીટીએલ નતું, એનપીટીએલ ની પેલું બીજું ને હતું ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ વાળું કોઈ હતું, હું તમને મોકલું ચાલો ને। હા એના 2 છે, હા 2 છે। હા હા आया अंकुर तेरा आंसर? अंकुर तू वीक में एक बार आता है, तेरे को कैसे समझ आएगा? नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है और थोड़ा घर में काम घर बना हम लोग। मैम हाँ बोल। मैम ई का वैल्यू 1/6 कैपिटल BD प्लस स्मॉल BD आया मेरा। ये ऐसा आया? कैपिटल DB क्यूब माइनस स्मॉल DB क्यूब ओपन 6B कैपिटल BD माइनस स्मॉल BD। अगर आप y एक्सिस पे फाइंड करते हो तो मतलब दिस इज अ एसेंट्रिसिटी ऑन EX, एसेंट्रिसिटी ऑन EY, दोनों के लिए सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक में BD क्यूब बाई 12 होगा, एक में DB क्यूब बाई 12 होगा। ओके तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी एसेंट्रिसिटी फाइंड कर रहे हो। सपोज मैं आपको बताती हूँ, अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये मेरा अगर ये जो मेरी एसेंट्रिसिटी होगी ना y एक्सिस से दैट इज इक्वल टू EX, ओके, और ये जो मेरी एसेंट्रिसिटी होगी ना दैट इज इक्वल टू EY, ओके, तो दिस इज इक्वल टू EX, दिस इज द वैल्यू फॉर EY। EX के लिए मेरा होएगा BD क्यूब बाई 12, मतलब ये होगा मेरा IXX, ओके, और ये होगा मेरा IYY। जिसका आंसर नहीं आ रहा हो वो देख लो एक बार, मैं बताती हूँ। मैम एक बार पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। क्या? ऐसा मैं तो किया बट मेरा रॉन्ग है मैम, ओके मेरा ओके रॉन्ग है आंसर। हाँ हाँ तो मैं करवाती हूँ। ओके सो दिस इज अ यहाँ तक तो आपको आता है ना, बिकॉज सेक्शन मैं मॉड्यूलस XX पे फाइंड किया ना मैम, IXX।
ओके चलो ये देख लो यहाँ पे. हाँ Okay, तो so वही मैं my किया section मैंने. modulus zxx is equal to what? That is equal to ixx upon y maximum. Okay, मतलब ये जो इसमें है ना, ये सपोज मेरा होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अगर मेरा ixx फाइंड करना हो, ओके सो ये इस एक्सिस पे यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ixx. ओके, अगर मेरी ये एसेंट, अगर मेरा लोड यहाँ पे लग रहा है, मेरा P यहाँ पे लग रहा है और ये एसेंट्रिसिटी EX है, तो इसके लिए जो मेरा आंसर आएगा, उसके लिए जो मुझे फाइंड करना है वो होगा IXX. ओके, सो ZXX is equal to what? That is equal to IXX upon Y maximum. मेरा Now what? गलत नहीं. ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IXX? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो कैपिटल BD क्यूब आउटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इनर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, और ये जो मेरा होगा वो क्या होगा? डेप्थ बाय 2, मतलब ये डिस्टेंस मेरा D है. ओके, सो माय Y मैक्सिमम इज इक्वल टू D बाय 2. ओके, तो ये हुआ मेरा ZXX इज इक्वल टू कैपिटल BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब अपॉन 6D. ओके, सेम अगर मैं अगर अभी यहाँ पे मेरा लोड कहाँ लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है. अगर मेरा लोड अब यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, ये मेरी एसेंट्रिसिटी की वो क्या हुई? EY. मेरा लोड यहाँ पे लग रहा है, पहले मेरा लोड यहाँ पे लग रहा था. ओके, सो माय व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ ZYY? दैट इज इक्वल टू IYY अपॉन X मैक्सिमम. ओके, यहाँ पे जो मेरा Y बाय हो जाएगा दैट इज इक्वल टू X मैक्सिमम. ओके, सो यहाँ पे सेम, यहाँ पे कैपिटल BD क्यूब की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? DB क्यूब, कैपिटल DB क्यूब बाय 12 माइनस स्मॉल DB क्यूब बाय 12, बिकॉज that is a moment of inertia on YY axis. ओके, और X मैक्सिमम मिला क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू कैपिटल B बाय 2. तो ये हो गया मेरा ZYY. ओके, सो ZXX एंड ZYY. नाउ सेम जो मेरा सर्कुलर सेक्शन के लिए था कि मेरा सिग्मा 0 और सिग्मा 0 लेसर सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा 0. ओके, तो इसके अंदर मुझे अभी वैल्यू ऐड करनी है. ओके, आ गया मैम, आंसर आ गया. आ गया? अगर नहीं आया हो तो यहाँ थोड़ा से. सा रॉन्ग था मैम. ओके, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा गलत हो गया. ऊपर तक सही किया था मैम, थोड़ा गलत. ठीक है. अब ये है EX के लिए और ये है दिस इज माय एसेंट्रिसिटी फॉर EX और दिस इज माय एसेंट्रिसिटी फॉर ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? Z बाय A क्या होता है? संकेत क्यों अभी आ रहा है? ओके, जो हमने सर्कुलर सेक्शन के लिए किया था सेम. ओके, Z ओपन एरिया मतलब सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ वन एरिया. माय एसेंट्रिसिटी इज लेसर इक्वल टू फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन द वैल्यू ऑफ E इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 9.6, जो हमारा आगे आ गया था 9.6. ओके, सो यहाँ पे मुझे सिर्फ Z की और A की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मुझे मिल जाएगा EX एसेंट्रिसिटी फ्रॉम द X एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी फ्रॉम द Y एक्सिस. ओके, सो ये दो आ गया मेरा आंसर. These two are my answers. अगर कट हो जाता है तो फिर से एकदम फटाफट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज के गूगल मीट में क्या होता है कि मैं वहां पे मतलब व्हाइट बोर्ड नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को लिख के नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ. वहां पे जो बुक में होता है वही करना रहता है, इसके लिए फिर मैं जूम ही यूज करती हूँ. और जूम में पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है. ओके, राइट डाउन दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. सिर्फ इक्वेशन यूज करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर. ड्रॉ, अभी आप लोगों को ऐसा होता है स्क्रीनशॉट ले लो, कैप्चर कर लो और खुद से आंसर करो. अगर जब ज्वाइन रीज्वाइन करो ना तब मुझे आंसर देना, क्योंकि अगर कट हो जाएगा तो इससे पहले आप लोग पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो. Draw a net sketch for the kernel for the following cross sections. एक rectangular section 200 by 300 mm, hollow circular section with external dia 300 mm, internal dia 50 mm, square with 400